Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom. Hope you're doing well and keeping safe. So today we'll discuss S. Nagalingam versus Shivagami. इससे पहले हमने सूरजमणि स्टेला कुजूर वाला केस किया हुआ है. Please do explore the LLB X playlist. It contains a lot many case laws, over 50 plus lectures now that will cover your semester syllabus. S. Nagalingam was the appellant. Shivagami was the respondent, but a simple सा case है relating to the Hindu Marriage Act. अच्छा यहाँ पे शी वॉज दी ओरिजिनल कंप्लेनेंट शिवगामी थी एंड सामने से अपने आप को डिफेंड करने आए थे नागलिंगम जी. सो बट यहाँ पे हम अपील स्टेज में है, सो देयरफॉर ही हैज बिकम द अपैलेंट नाउ एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग. सो वी आर एट द सुप्रीम कोर्ट के अपैलेंट स्टेज में. तो इनकी 6/9/1970 को, दैट इज 6 सितंबर 1970 को शादी हुई, स्वाहा हो गया और 3 बच्चे निकले उसमें से. सो आउट ऑफ द वेडलॉक देयर वर 3 किड्स दैट वर देयर. Then Shivagami ji alleged that there was physical torture being done here and by the husband and by the mother-in-law. तो उन्होंने allege किया and then she left. And then well she gets to know as usual पति पत्नी और वो तो कि 18/6/1984 को एक नई बीवी आई है जिनका नाम है कस्तूरी. तो कस्तूरी जी अब जिंदगी में आ गई हैं. अब कस्तूरी जी जिंदगी में आ गई जैसे हमने आपके कुजूर वाले जो केस में देखा था. नाउ वेल वी गेट द डिस्कशन ऑफ बाइगमी इनटू द पिक्चर. सो एज सून एज बाइगमी कम्स, सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कम्स इन, section 494 of the IPC comes in, and you have to explain to the examiner A that you know all of these provisions, B how are these provisions now connected with the facts. So this is specifically a case relating to section 7A, that is a state amendment now connected with the constitution. List 3 concurrent list में कहीं होगा, that is why state is allowed to make such an amendment, right? Entrance exam memories must be coming in by hearing concurrent. So she filed a criminal complaint before the Metropolitan Magistrate and all accused were acquitted by the trial court. कि भाई हमें तो ट्रायल कोर्ट कह रहे भाई मेरे को तो समझ नहीं आई कैसे बाइगमी हो गई और जाइए आप लोग सारे के सारे घर जाइए. Now let us make a sort of a flow chart to understand the facts better. So trial court acquitted all, so she appealed, so she is the appellant here right now. And High Court, well, upheld acquittal of accused 2 to 7. We are not concerned with who these 2 to 7 were. मतलब basically सामने वाले की पूरी family ही होगी. But it upheld the acquittal of accused 2 to 7, but it remitted the case back to trial court. And High Court ने trial court को दोबारा बोला कि जरा एक बारी please देख लीजिए दोबारा, you know, just allow the complainant to adduce evidence, that is to bring in more evidence in the with respect to the manner in which this marriage was solemnized. ट्रायल कोर्ट भाई देखे थोड़ा सा. ओके सो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, तो हाई कोर्ट ने जब वापस ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अगेन एक्विटेड अक्यूज नंबर 1. तो पहले तो ट्रायल कोर्ट ने एक्विटेड ऑल अक्यूज, दैट इज अक्यूज नंबर 1. हम बेसिकली मिस्टर क्या नाम था जी इनका, नागलिंगम के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर. ऑलराइट, सो ही इज अक्यूज नंबर 1. ऑलराइट, सो जस्ट लाइक हीरो नंबर 1 इज आर अक्यूज नंबर 1. तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ट्रायल कोर्ट ने क्विट कर दिया, अपील में गए, हाई कोर्ट ने बाकी सबको क्विट कर दिया, लेकिन अक्यूज नंबर 1 के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस केस भेजा कि जरा दोबारा देखना, क्या पता तुमसे कोई गलती हो गई हो, देख लो, तुम देख लो. तो ट्रायल कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने अगेन एक्विटेड अक्यूज्ड नंबर 1. देन शी अपील्ड अगेन टू द हाई कोर्ट इन विच द सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, that single judge convicted accused number 1 of 494 IPC, and now he has appealed and we are sitting in Supreme Court. तो जब भी आप अपने केस मैट में केस पढ़ेंगे, you are well reading the Supreme Court's judgment, Supreme Court's view on the entire case. Now as usual, as we saw in the previous lecture as well, let's go to 494 IPC. Always try to write the chapter in which this offense is mentioned, just कि कोई examiner अगर you know दे, कहीं वो examiner कभी कभार extra number दे देता है कि हाँ भाई बच्चा पढ़ कर आए, कोई बात नहीं, चैप्टर 20 हम लिखाएंगे. चैप्टर 20 एंड पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा था, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चैप्टर 20 में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज. ऑलराइट, सो मैरिज एंड अमेंडमेंट्स somehow are related. That's just the way that I've remembered. If you wish to, you can also make a note of this. So 494 section, marrying again during lifetime of husband or wife, whoever. Section हमारा बड़ा secular है, it includes everyone. Having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void. लेकिन void तो बहुत सारी है हिंदू मैरिज एक्ट में. By what reason? By reason of its taking place during the life of such husband or wife. Basically पहली शादी, कह जी टाइगर अभी जिंदा है,
और आपने उस शादी के चलते चलते दूसरी अगर शादी करी तो हम आपको 494 आईपीसी के तहत पकड़ेंगे, राइट? So now the question before the Supreme Court is a very छोटा सा question, that whether the second marriage was done in a way that it was a valid marriage, because if it were an invalid marriage तो दूसरी marriage तो the status, उसने validity कभी अपनी basically the validity was never conferred on it, तो 494 IPC आएगा कैसे? दूसरी शादी पूरी proper तरीके से होनी चाहिए कि वो शादी हो in the eyes of law. जब वो अगर शादी हो गई तो फिर हम 494 IPC में पकड़ लेंगे. Since this primarily we are studying about the Hindu Marriage Act, we won't go into the issue of bigamy etc. in other religions. All right, so we'll stick here. तो second marriage अगर valid है, अगर valid हुई, valid in the sense कि it was done validly, all the requisite conditions, customs, rites, ceremonies were performed to give it a status of a marriage, then if your first one is subsisting, this second one will be rendered null and void, and you basically will come under the dock for section 17 bigamy, section 17 of the Hindu Marriage Act 955, and then offense 494 of IPC. All right, तो यहाँ पर आपने अपने आंसर में सेक्शन 17 मेंशन करना है, आपने अपने आंसर में सेक्शन 7A मेंशन करना है, आपने अपने आंसर में सेक्शन 494 आईपीसी मेंशन करनी है. आपने अपने आंसर में ये नहीं मेंशन करना कि किस मैरिज हॉल में हुआ था या मैरिज हॉल की लोकेशन क्या थी. डजंट रियली मैटर. द एग्जामिनर्स 1000 बार उसने भी फैक्ट पढ़े हुए हैं, 1000 बार आपने भी फैक्ट पढ़े हुए हैं. आप 5-6 पन्ने भी अगर फैक्ट्स के खींच के लिख के आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे. कानून लिख कर आना है, क्योंकि कानून का ही एग्जाम दे रहे हैं ना आप. सो नाउ 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ 494. accused की first marriage, accused must have contracted the first marriage. Then second ingredient is that whilst the first one is subsisting, the second marriage must have been contracted. Both marriage should be valid with respect to ceremonies performed, as in valid in the sense कि भाई ceremony कोई पाठ पूजा फेरे पंडित जी आए, या अगर आप कोर्ट, बेसिकली कोर्ट तो हम यहाँ पे नहीं जा रहे, कोई स्पेशल मैरिज एक्ट का केस नहीं है ये, लेकिन मतलब जो भी सेरेमनी है वो पूरी होनी चाहिए, तभी ये काम होगा. 494 आईपीसी तब आएगी. अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने दे बेस्ड दैट पर्सन बेसिकली बेस्ड देयर डिसीजन कि सप्तपदी वाज नॉट परफॉर्म्ड. नाउ सप्तपदी इज गिवन, आई थिंक DOLB 2020 में प्रश्न भी था, व्हाट इज सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कंटेन, दैट्स सप्तपदी. So metropolitan magistrate's contention, basically you can say the ratio was that Saptapadi was not performed, and second marriage was not a valid marriage act. तो therefore जब दूसरी शादी हुई नहीं तो मैं 494 IPC लाऊं कहाँ से? तो बीवी जी कह रही है हुई है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कर रहा है इनके फेरे नहीं हुए, तो मैं 494 IPC एक्टिवेट ही कैसे करूं? क्योंकि दूसरी मैरिज डजंट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ द लॉ. उसको पहले पूरा तो कराओ, तो ही तो मैं 494 IPC लेकर आऊंगा, राइट? अब हम चल रहे हैं जी यहाँ पर सेक्शन 7A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट was applied now in this case. तो यहाँ पे prosecution witness 3 gave detailed evidence. तो यहाँ पे एक witness का cross examination हुआ, gave detailed evidence that marriage तो certainly took place but no सप्तपदी was performed. कि मैंने कोई फेरे होते हुए नहीं देखे, वो जो 7 फेरे जो आप लेते हैं, मतलब शादी चलनी हो तो एक में भी चलेगी, और अगर ना चलनी हो तो फिर 700 भी कर लीजिए. लेकिन उसने कहा कि वैसा वैसा मैंने तो 7 फेरे नहीं देखे. ठीक है जी. फिर आगे हम चलें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ कोट करा. वैसे तो 3-4 आपके केस में एक्ट में बहुत सारे केस लॉज कोटेड है, बट यहाँ पे आई विल जस्ट पिक अप वन. अगर वह रेफरेंस दे पाए, अगर ये याद रह जाए ग्रेट, नहीं याद रह जाए आंसर लिखते टाइम तो भी चलता है. ओबी में तो ऑब्वियसली आपके सामने ही पड़ा होगा. प्रियबाल घोष वर्सेस सुरेश चंद्र घोष प्लस अदर केस लॉज कि सप्तपदी एंड दत्त होमो वर एसेंशियल टू अ हिंदू मैरिज. बट यहाँ पे सेक्शन 7A में आपको, सेक्शन 7A पे जाते हैं, जरा स्टेट अमेंडमेंट देखते हैं तमिलनाडु वाली. सेक्शन 7A स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सुयमरियथाई एंड सीरथी रुथ मैरिज. अब ये इनकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता क्या है, बट लेट्स कम टू द सेक्शन दैट इज रेलेवेंट फॉर अस. नाउ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7A. ऑलराइट. This section shall apply to any marriage between any two Hindus, whether called dash marriage or by any other name, solemnized in the presence of relatives, friends or other persons. तो पहली कंडीशन क्या है? relative, friends और other persons. Other persons में priest वगैरह भी include हो जाएंगे. By each party to the marriage declaring in any language understood by the party that each takes the other to be his wife or as the case may be her husband. कि भैया आप बता दें कि जी अब मैं कसम खाता हूँ या खाती हूँ कि आज के बाद किसी और के साथ नहीं सोऊंगा या सोऊंगी. That is what the essential of a marriage is, and that I won't leave no matter what. That is pretty much the oath of a marriage. By each party to the marriage garlanding the other
बेसिकली सामने वाले में फांसी का फंदा, उप्स सॉरी, गार्लैंड आप डालेंगे, राइट, और पुटिंग अ रिंग अपॉन एनी फिंगर ऑफ द अदर और बाय द टाइंग ऑफ द थाली। तो वहाँ पे कोई थाली होगी, साउथ इंडिया का कस्टम होगा, तो थाली में आप कोई धागा धूगा बांध के बेसिकली ओथ लेनी है आपने, राइट। तो एसेंस ऑफ मैरिज, बट यहाँ पे कहीं सप्तपदी तो लिखी नहीं, तो नागलिंगम भैया थोड़ा सा इनका नाग फंसना शुरू हो गया। अब सब सेक्शन 2 पे जाते हैं। Notwithstanding anything contained in section 7, but subject to the other provisions of this act, all marriages to which this section applies solemnized out of the commencement of the Hindu Marriage Tamil Nadu Amendment Act 1967 shall be good and valid in law. अब वो कह रहे हैं भाई साहब 7A के हिसाब से तो सप्तपदी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। Now, presence of a priest, this section doesn't make it, this is not sine qua non for the operation of this section, it's not necessary. सिंपल सेरेमनी आपने करी, रिंग डाली, गार्लैंड डाला, प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड, शादी हो गई आपकी, सप्तपदी की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि अब आपकी शादी इस अमेंडमेंट के तहत फॉलन कर रही है, बिकॉज यू बिलोंग टू दैट स्टेट, राइट। 7A। तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 ने जो एविडेंस दिया था, इट क्लियरली शोड दैट देयर वाज अ वैलिड मैरिज। द थिरुमंगलम वाज टाइड, बेसिकली मंगलसूत्र वाज टाइड। देन कन्याथान वाज डन, बेसिकली कन्यादान, फादर ऑफ द ब्राइड सेड दैट आई एम गिविंग माय डॉटर इन, ये कन्यादान मैं कर रहा हूँ ताकि आपका वंश बढ़े। ऐसे किसी पिताजी के लिए भी कितनी दिक्कत की बात होती है, बिकॉज यू नो यू गिविंग योर चाइल्ड योर हार्ट का टुकड़ा, कि सामने वाले का वंश बढ़े, बिकॉज दैट मैन इज प्रीटी मच इनकम्प्लीट विदाउट द वुमन, राइट। एंड गार्लैंड्स एक्सेट्रा वर एक्सचेंज्ड, तो हो तो गई शादी 7A के हिसाब से। यहाँ पे और एक मैंने लाइन पुल आउट कर लिया आपके केस मैट से कि सप्तपदी वाज हेल्ड टू बी एन एसेंशियल सेरेमनी फॉर अ वैलिड मैरिज ओनली इन केसेस वेयर इट वाज एडमिटेड बाय द पार्टीज दैट एज पर द फॉर्म ऑफ मैरिज एप्लीकेबल टू देम दैट वाज एन एसेंशियल सेरेमनी। या तो भाई कोई कस्टम ले आओ, प्रूव करा दो कि भैया सप्तपदी के बिना तो हमारे यहाँ शादी गिनी नहीं जाती, कि बिना फेरों के कैसे हो गई, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। Therefore, the judge of High Court, now Supreme Court is saying, therefore, judge of High Court was correct and the appellant was rightly convicted. The appeal stood dismissed. बाइगमी करी तो है उसने, क्यों? 7A के हिसाब से उसकी दूसरी शादी तो हो गई, ग्रेट। प्रोसिक्यूशन विटनेस, प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की शादी हुई भी थी। मेन मुद्दा ये रह गया था कि दूसरी जो शादी जो थी उसमें सप्तपदी नहीं हुई थी, तो वेदर इट वाज अ वैलिड मैरिज, वैलिड एज इन कि नॉट वैलिड इन द आइज ऑफ द सोसाइटी, वैलिड इन द आइज ऑफ द लॉ, so that section 17 comes into play, so that section 494 IPC comes into play. तो section 7A के तहत की गई जो शादी है थैंक्स टू द स्टेट अमेंडमेंट, उसमें आपका काम हो गया, just as simple as that। और जब वो काम हो गया तो 494 IPC में जब हाई कोर्ट ने आपको पकड़ा है नागलिंगम जी को, ग्रेट, ठीक ही पकड़ा, ठीक है जी। तो ये वाला काम आपका हो गया। ऐसा आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो आई डोंट यूजली रिकमेंड इट कि आप अपने आंसर्स ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह बना कर आएँ, बट जस्ट मेक इट क्लियर टू द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड द पर्पस फॉर विच द केस एग्जिस्ट्स इन योर syllabus. That's all that there is to it. Please do explore LLBX series for more. I'll link the playlist in the card up. Wishing you all the very best for your exams. Take care. Bye.